بسم اللہ الرحمن الرحیم. طبی اخلاقیات اور اطباء کے فرائض. نمبر 1. علاج کرنے کا حق اس شخص کو حاصل ہے جو فن کا علم رکھتا ہو اور تجربہ کار ہو اور اس کے علم اور تجربہ کی کسی مستند و معتبر ذریعہ نے تصدیق کی ہو. صحیح علم اور تجربہ کے بغیر علاج معالجہ کرنا جائز نہیں. جس شخص کو علاج معالجے کی شرعاً اجازت نہیں، اگر اس کے علاج کی وجہ سے مریض کو غیر معمولی ضرر لاحق ہو جائے تو ضمان عائد ہوگا. نمبر 2. اگر کسی مستند معالج نے علاج میں کوئی کوتاہی کی اور اس کی وجہ سے مریض کو ضرر پہنچ گیا تو معالج ضامن ہوگا. نمبر 3. اس طرح قدرت کے باوجود مریض یا اس کے اولیاء کی اجازت کے بغیر اگر ڈاکٹر مریض کا آپریشن کر دی اور آپریشن مضر یا مہلک ثابت ہو تو ضمان لازم آئے گا. نمبر 4. اگر مریض بے ہوش ہے اور اس کے اولیاء وہاں موجود نہ ہو اور ڈاکٹر یہ محسوس کرتا ہو کہ اس کی جان یا عضو کی حفاظت کے لیے فوری آپریشن ضروری ہے اور اس نے اجازت کے بغیر آپریشن کر دیا مگر مریض کو نقصان پہنچ گیا تو ڈاکٹر ضامن نہ ہوگا. نمبر 5. اگر کسی شخص کے رشتہ نکاح کی بات چل رہی ہے اور وہ کسی مرض یا عیب میں مبتلا ہے جس پر مطلع ہونے کے بعد مخطوبہ عورت اس سے نکاح کرنے پر راضی نہ ہوگی، ڈاکٹر کو اپنے مریض کے مرض یا عیب کا علم ہے. اس صورت میں اگر عورت یا اس کا ولی ڈاکٹر سے ملاقات کر کے مریض کے مرض یا عیب کے بارے میں رشتہ نکاح کے حوالے سے مریض کی صحیح صورتحال معلوم کرنا چاہے تو ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے کہ صحیح صورتحال کی خبر دے دی. لیکن ڈاکٹر سے اگر اس بارے میں عورت یا اس کے اولیاء نے رابطہ قائم نہیں کیا تو اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ عورت یا اس کے اولیاء کو اس مرض یا عیب کی اطلاع دے. نمبر 6. ڈرائیور کی بینائی کے متاثر ہونے کی صورت میں ڈاکٹر پر ضروری ہوگا کہ وہ متعلقہ محکمہ کو باخبر کر دی. اسی طرح ہوائی جہاز کا پائلٹ یا ٹرین اور بس کا ڈرائیور اگر نشہ کا عادی ہو اور اس سے مسافروں کو خطرہ لاحق ہو تو ڈاکٹر پر لازم ہوگا کہ وہ متعلقہ محکمہ کو آگاہ کر دے. نمبر 7. اگر ڈاکٹر کو اپنے مریض کے جرم کی اطلاع ہو اور جرم میں کوئی بے گناہ شخص ماخوذ ہو رہا ہو تو اس بے گناہ شخص کی براءت کے لیے ڈاکٹر پر حقیقت حال کا اظہار ضروری ہے. رازداری سے کام لینا اس کے لیے جائز نہ ہوگا. اسلام میں غریب کی ذمہ داری اور غریب کی ذکر کیے گئے ہیں. اس نسبت سے ضروری ہے کہ اطباء کی بھی کچھ اخلاقیات ہے. شرعی اعتبار سے ان کو بھی کچھ چیزوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. آپ نے سنی پرانا مقولہ تو مشہور ہے، دین ملا قطرے ایمان اور دین قطرے جان. تو دین ملا کا بھی مسئلہ، دین مفتی کا بھی بہت پریشانی کا مسئلہ ہے. بغیر مطالعے کے مفتی فتویٰ دے دیں یا بغیر کتابوں کی تکمیل کیے ہوئے پڑھ دیں تو بھی ایسا ہوگا. یہ بھی ضروری ہے. تو طبی اخلاقیات میں سب سے پہلے ہم کا علم رکھنا ضروری ہے. حقیق علیم اور دوسری جو آیتیں آپ سن چکے ہیں، اس کی روشنی کے اندر ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. اس لیے ڈاکٹر اور حکیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس فن کا ماہر ہو. آج کل ان لوگوں نے مستقل ہر ایک کے لیے تخصصات کے شعبے کر دیے ہیں. ان شعبوں میں وہ جانتا ہو اسی شعبے کی اس کو تعلیم دی جاتی ہے اور اسی شعبے کا وہ لوگوں کا علاج بھی کرتا ہے. چھوٹے بچے کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ گے اور بچوں کا ڈاکٹر نہیں تو وہ منع کر دے گا کہ میرے پاس نہیں. ایک تو ہمارے لوکل ڈاکٹر ہے چھوٹے سے لے کر بڑے تک اور چھوٹی بیماری سے لے کر بڑی ساری بیماریوں کے ذمہ دار رہ جاتے ہیں. یہ نارمل دوا دیتے ہیں، ان کی دوائیوں سے کوئی اتنا خطرہ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ جانتے بھی ہیں اور پھر دوسرے بڑے ڈاکٹر کی طرف رہنمائی بھی کر دیتے ہیں. لیکن عام احوال میں اسی طرح ہے. اس لیے حکومت تھوڑے تھوڑے دنوں کے اوپر چھاپے بھی مار کی ہے اور اس قسم کے حکیم اور ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کا اگر ان کے پاس صحیح سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا ہے تو اسے بھی کر لیتے ہیں، ان کو جیل میں بھی جانا پڑتا ہے. یہ حکومتوں کے یہاں بھی ہے اور اسلام نے بھی یہی اصول اور یہی ضابطہ مقرر کیا ہے. جس کو اجازت نہیں ہے اس کے لیے جائز نہیں ہوگا اور اگر بھی علاج کیا تو ضامن ہوگا اگر اس نے گڑبڑ کی تو. مستند معالج سے بھی علاج میں کوتاہی ہوئی ہو اور اس کی وجہ سے مریض کو ضرر پہنچ گیا تو معالج ضامن ہوگا. اگر اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اگر کوتاہی نہیں کی ہے اور معمول کے اعتبار سے ہی بیماری کا علاج کیا اور اچانک ہو گیا تو تقریر بھی تو کوئی چیز ہے. ڈاکٹروں کے پاس سب کچھ نہیں ہے. کبھی معمولی ڈاکٹر سے اچھا ہو جائے اور کبھی کسی بڑے ڈاکٹر سے بھی غلطی ہو. قاسم عاطف صاحب یہ آنکھ کی تھوڑی تکلیف تھی، گئے ڈاکٹر کے پاس، انہوں نے آپریشن کیا اور وہ گئی اتفاق سے آئے یہاں پر مجھے کہا کہ مجھے لے جاؤ ایک ڈاکٹر کے پاس. اس کی کلینک کر کے ہیں، تھوڑی ہے لیکن سلمان ہے اور وہ بھی جلس ہے، اب تو بڑی عمر کے ہو گئے. ان کے پاس لے گئے. انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھ کر کہ مولانا اس میں اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. جس کا مولانا قاسم صاحب نے جس کے پاس کروایا تھا اس کا وہ مولانا بولنے لگے اس نے ایسا کیا ویسا کیا. اس نے کہا کہ اس کا بھی کوئی یہ چیز ہے ہی ایسی.
हम लोग कितनी समझदारी और फहम और दूरअंदेशी के साथ काम करें, लेकिन आँख का मसला है, ज़रा कुछ हो गया तो फौरन मसला बदल जाता है। इसलिए इसने जो कुछ किया आप उसके ऊपर अल्लाह की मर्जी पर राजी हो गए, गौरी होकर वो कह रहा है। ये मैं डॉक्टर की लाइन का हूँ, इसलिए इसकी बुराई नहीं कर रहे, इसलिए इसकी ये नहीं कर रहा हूँ फेवर उसका लेकिन बात यह है कि इस तरह, लेकिन ऐसा हर मरतबा नहीं होता है। कभी कभार उनकी आजकल तो कसरत से देखा जा रहा है, मैच हो रही है और वो ऑपरेशन भी कर रहे हैं, मैच भी देख रहे हैं। इस तरीके से सियासत का कोई मसला है वो सुन भी रहे हैं, और इसके साथ तो अगर डॉक्टर अपनी मुकम्मल इसके साथ एहतियात के साथ अमल करता है, अब अगर ऐसा हो गया तो नामी नहीं होगा। खैर हमारे यहाँ तो डॉक्टरों का उमूमी तौर पर मेडिकल यूनियन होता है, इसलिए डॉक्टर के मुताबिक इस तरह की चीज़ होती है तब भी जल्दी मानी नहीं जाती है और डॉक्टरों का फेवर होता है। लेकिन यूरोप के ममालिक, अमेरिका वगैरह ममालिक, वहाँ डॉक्टर से इस तरह होता है तो लंबा चौड़ा क्लेम उनको आता है अगर उनकी गलती साबित हो जाए। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कहा जाता है, ये भी तकरीब है, और कुछ नहीं लिया जाता, ये भी इफराद है। इसलिए अगर इनसे इस तरह का कुछ हुआ तो यकीनन जिम्मेदार बनाने चाहिए, और इसके हिसाब से मरीज का अब इलाज होने के लिए कितने रुपये हो सकते हैं तो फिर इस तरीके का उनके पास से लिया जाए, और अगर इलाज ही मुमकिन नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा लिया जाए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। हमारे यहाँ तो दियत भी अगर आती है तो 10 लाख 15 लाख, इससे ज़्यादा दियत ही होती है। इस्लामी जो दियत है वो यहाँ जो होता है कि एकदम से 50 लाख में, 1 करोड़ में, 2 करोड़ में, 10 करोड़ का उनके ऊपर क्लेम लगाया जाता है। लगाया इसलिए जाता है कि कुछ तो मिलेगा इंडिया में ही, लेकिन यूरोप के मुल्कों में ऐसा नहीं होता, वहाँ तो लगा पर उसके बाद होता भी है। इसी तरह कुदरत के बावजूद मरीज या इसके अवलिया की इजाज़त के बगैर डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर गए, और ऑपरेशन मजीद मोहलिक साबित हो, जमान आएगा, इस तरह दौड़ रहा बनने का किसने कहा था, इतना नंबर चौड़ा। मरीज बेहोश है, अवलिया मौजूद नहीं है, और डॉक्टर ने देखा कि अगर इसका इलाज नहीं किया जाएगा तो मसला होगा। हमारे एक तालिब इल्म में मरीज उल्टा पड़ता था और उसका पेट का तकलीफ थी, हिफ्ज़ क्लास में था, अभी छोटा था, उसके बाद तो फारिग होकर भी गया, शानदार फारिग हो। तो अब वो बीमार हुआ, वहाँ रीपुर तक पहुँचना और वहाँ तक ले जाना, डॉक्टर यहाँ जो थे गोवर्धन में शरीफ और अच्छा डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि भाई वहाँ तक ले जाने में इसका खतरा है, और यहाँ भी ऑपरेशन नहीं करोगे तो 2-4 दिन में इसका मसला गड़बड़ हो जाएगा, पेट में और दूसरी बीमारी और जहर फैल जाए तो और भी बच जाएगा, अपेंडिक्स। मशवरा करके मुझसे फोन पर बात की गई, रिश्तेदार एकदम तो कोई तैयार नहीं होता है, कहा कि शायद किडनी निकाल दे। ये जो खतरे होते हैं ना हमारे यहाँ, किडनी किसी जगह पर रखी हुई है ना, वहाँ से सिर्फ निकाल लेनी है, ऐसा नहीं है, वो इसमें कि बहुत सारा आधा से लगी हुई है। तो अब उसके बाद इलाज करने के लिए उनको कहा गया कि भाई आप खुद आ जाओ 2 दिन में। वहाँ से आना भी मुश्किल, हिंदुस्तान के उस कोने में है, सबसे अखीर में बर्मा की साइड से लगा हुआ है, तो इतने दूर जाना भी मुश्किल और वहाँ से आना भी इतने दिन में मुश्किल। और यहाँ ये था जब उनको फोन से डॉक्टर से बात करवाई गई और इत्मीनान हुआ, तो उसके बाद माशाअल्लाह चलने भी लगी। लेकिन हम लोगों को भी खतरा था कि खुदा न खास्ता का अपेंडिक्स का ऑपरेशन नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन बात ऐसी है कि कभी नॉर्मल चीज़ भी खतरनाक हो जाए। एक डॉक्टर से सारे मराहिल आसान हो जाए ना, आसान में हफीसा पड़ी ये आलामीन भिजवा जाए और फिर ऐसा फर्क निकल जाए, ऐसा होता है। अगर मरीज बेहोश हो तो अवलिया, अगर डॉक्टर ये समझ रहा है कि ऑपरेशन के लिए फौरी ज़रूरत है, तब भी आजकल करते नहीं है, इसलिए कि इस तरह का होता है, इसलिए और दस्तखत लेने पड़ते हैं। और एक उसकी दुनिया है कि जिसमें ज़बरदस्ती ऑपरेशन करवा ले तो ऑपरेशन करना ज़रूरी नहीं होता है। एक बार मैं सुना है कि उनकी बीवी का बच्चे का मसला था, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ऑपरेशन करना पड़ेगा। इन्होंने कहा देखिए ऑपरेशन का जितना खर्चा होता है वो भी दे देगा, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी करवाओ। हो गई, बच्चा इतना दे दिया, उसके बाद तो बहुत मसला हो गया। अगर किसी शख्स के रिश्ते निकाह की बात चल रही है और वो किसी ऐसे मर्ज में मुब्तला है कि औरत को जहाँ उसके निकाह का जिन मसाइल में हक होता है वो लोग राजी न हो, डॉक्टर को अपने मरीज का इल्म या आयब का इल्म है, अगर ये लोग डॉक्टर से पूछें कि भाई क्या है, आजकल ये होता है कि लड़का लड़की जो मामूली से बीमार होते हैं और निकाह की मंगनी का मसला आया है, अब किसी से पूछते हैं तो कह देते हैं कि तो बुखार बीमारी से कहता हूँ, नहीं हूँ बीमारी से गड़वा हूँ, यानी सीधे कैंसर तक पहुँच जाते हैं। इस तरह के मसाइल भी होते हैं। इसलिए डॉक्टर को अगर ये लोग पूछने जाएं और हकीकत में खतरनाक बीमारी है तो डॉक्टर उनको इत्तला दे सकते हैं, लेकिन खुद बखुद वो ना आए। इसी तरह इस्लामी फिक़ह एकेडमी जिद्दा मक्का वालों ने एक और दूसरा सेमिनार में वो चीज़ भी कही है
किसी को एड्स की बीमारी है और लड़की बीवी शोहर से अलहदा होना चाहती है, अब ऐसे मौके के ऊपर एड्स है या और दूसरी इस तरह की बीमारी है, तो कोरोना भी उसी में आ गया, मियाँ बीवी का मसला, उसमें भी डॉक्टर कह देते हैं कि ज़रा एक दूसरे से दूर रहना। दूर रहने की बात अलग है और ये मसला दूसरा है। तो अब अगर औरत के रिश्तेदार डॉक्टर के पास जाए और पूछें तो डॉक्टर को सही मालूमात देना ज़रूरी है। दो चीज़ें अलग अलग है, एक तो शादी से पहले का मसला है, वो तो खैर अपनी जगह पर है। एक शादी हो जाने के बाद औरत या औरत के रिश्तेदार आए और वो डॉक्टर से पूछें, उस वक्त कभी मसला तो वही है, इसलिए कि औरत को शादी से पहले तो खतरा टल गया, शादी के बाद तो अब इसके घर पर गई है। कभी कभार झूठे सर्टिफिकेट बनवा कर अलाहिदगी इख्तियार करना होती है, ये भी। और कभी ये होता है कि अलाहिदगी न हो इसलिए झूठा करते ही डॉक्टर बतला देता है, डॉक्टर को कहते हैं कि ये बीमारी मत बतलाना। जब कोरोना का सिलसिले के अंदर मिल जाते हैं तो इस तरह की तमाम बीमारियों के अंदर मिल जाते हैं, तो ये लोग राब्ता करे तो बतलाना ज़रूरी है, राब्ता न करे तो बतलाना ज़रूरी है। लेकिन आगे कुछ वो चीज़ें हैं कि जिसमें लोगों को नुकसान होता हो, जैसे बताया डॉक्टर की बीमारी, ड्राइवर की बीमारी और उससे मुतासिर है, वो गाड़ियाँ चला रहा है, इसी तरीके से इस तरह के कल्ब के मरीज़ है तो जो इस तरह का ऊपर का सफ़र नहीं कर सकते और वो पायलट है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो डॉक्टर को इनके मुताबिक भी कमर से, इसलिए कि इनका अकेले का नुकसान नहीं है, सबको लेकर सोएगा वो। इसलिए इस किस्म के मसाइल में एक मरतबा हम लोग यहाँ से जा रहे थे राजस्थान, एक साहब ने गाड़ी भेजी और ड्राइवर को दूसरे ही आए, हम लोग नहीं जानते थे। ड्राइवर की आदत होती है, हजाम की आदत होती है, पूरी अपनी कारगुजारी बयान करनी। अभी तो बोलो नहीं, पूरा नहीं हुआ, इससे पहले उसने अपनी कारगुजारी का धमाका किया। मैं बस में ड्राइवर था, बिनाई की कमजोरी थी, इसलिए मुझे ड्राइवर से निकाला। तो मैंने उसकी बात पीछे वालों को बहुत कम सुना है, लेकिन फिर भी सफर अल्लाह अल्लाह करती। वापसी के अंदर दिशा आता है और वो रात को ही आता है दिशा से उन्होंने दिशा बदल दी, दिशा से राजनपुर का रास्ता ले लिया, हालांकि आना था सीधा ही महसाना की तरफ, पूरी पत्ती ऊपर की शिमाली में जाती है राजस्थान जाने के लिए। तो थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई नया रास्ता है, आगे ही बैठे जाएँ। तो मैंने उनको कहा कि रास्ता शायद हम बदल चुके हैं, शायद वो आँखों का असर यहाँ आ गया है। तो उसने भी, वो भी समझदार था, उसको भी तो एहसास हो ही गया था, गाड़ी रोकी 2-4 किलोमीटर ही आगे गए थे, फिर वापस आकर 4 रास्ते से महसाना की तरफ की राह ली। तो ड्राइवरों की बिनाई थोड़ा भी इमाम साहब थे, बरसों तक पुराने जो बुजुर्ग थे, वो थोड़ा की थोड़ा की बड़ी उम्र के बुजुर्ग थे, जो मौलाना थे, एहसान थे, अभी देखा 7 साल पहले वो ये हथौड़ा है कि दूसरा कोई हथौड़ा है, आप हथौड़ा के हो, यही हथौड़ा के हो, इस अंदाज से देख। वो मौलाना लतीफ़ा बहुत सुनाते थे, उन्होंने सुनाया कि एक मतलब एक जगह पर मौज़िन रखना था किसी मस्जिद की, शायद हथौड़ा ही का किस्सा हो या कहीं और का हो। तो मुकल्लियों ने कहा कि नाबीना थोड़ी आँखों की कमजोरी थी, मुकम्मल नाबीना तो नहीं था, आँखों की कमजोरी थी। तो मुकल्लियों ने कहा कि क्या हालत है, इन्हें तो अदालत दीवानी थी, ये नहीं पता चला कि वो अजान का वक्त भी तो देखना 12:30 बजे अजान दे दे, टाइम ही ना हो। तो इसलिए इस किस्म के मसाइल में भी बहुत ज़रूरी है डॉक्टर को अपने मरीज़ के जुर्म की इत्तला हो, जुर्म में कोई बेगुनाह शख्स, ऐसा भी होता है। एक आदमी ने, चोरों ने, डाकुओं ने किसी जगह पर हमला कर दिया और अब उसके बाद उनको भी कुछ जख्म लगा, कूदे नीचे, तलाश करना है कातिल को कि कौन है। अब वो जाता है किसी ऐसी जगह पर कि जहाँ कुछ पता न चले, लेकिन डॉक्टर लोग उसके मरने, गिरने, पड़ने के जो बदन के अज़्ज़ा होते हैं उनसे देखकर महसूस कर लेते हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ है, कि जख्म हुआ है, कि बीमार है, या कहीं एक दूसरे के साथ मुठभेड़ हुई है। तो ऐसे मौके के ऊपर ये तो मुजरिम है, अब इसके बजाय किसी और को हुकूमत पकड़ रही है और ये मुजरिम आराम से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो उसकी इत्तला देना डॉक्टर के लिए जरूरी है। यहाँ भी कानून है हिंदुस्तान में भी, एकदम अगर इस तरह का मरीज आया और डॉक्टर ने नहीं बतलाया तो डॉक्टर के लिए गुनाह है। इसलिए कुछ बीमारियों में, कुछ चीज़ों में आप जानते हैं वो डॉक्टर उसको लेते ही नहीं है इस किस्म के लोग, जहाँ जब तक ये पूरी तरीके से तहकीक नहीं होती है। इसलिए कि मुजरिम को पकड़ लिया और फिर पता चला तो डॉक्टर को भी आएगी कि तुमने कैसे ले लिया, कौन लेकर आया, लेकिन मुजरिम तक पहुँचना है, इस तरह की सारी कार्रवाई। ज़ब्ते विलादत नंबर 1, कोई भी ऐसा अमल जिसका मकसद नस्ल इंसानी के सिलसिले को मुनक़ते या महदूद करना हो, इस्लाम के बुनियादी तसव्वुरात के खिलाफ और नाजायज़ है।
नंबर 2, बतौर फैशन खानदान को मुख्तसर रखने या तिजारत और मुलाजमत की मशगूलियतों के मुतासिर होने या समाजी दिलचस्पियों में रुकावट पैदा होने की वजह से औलाद की जिम्मेदारी से इनकार व गुरेज को शरअ इस्लामी किसी हाल में कबूल नहीं कर सकती। विलादत एक तो पुराना ज़माना था। 19वीं सदी में एक आदमी पैदा हुआ है, डॉक्टर मार्कस, रॉबर्ट मार्कस, और उसने ये नजरिया कायम किया था कि ज़मीन जो बढ़ रही है, हम जो इंसानी नस्ल जो बढ़ रही है वो 1, 2, 4, 8, एक गांव में एक आदमी एक फैमिली के साथ गया, 100-200 साल में पूरा गांव आबाद हो जाएगा। तो मालिक की तरफ पूरी की पूरी टीम तैयार, अब नहीं होगी। 2011 का जो ज़ब्ती विलादत का यानी हिंदुस्तान में नस्ल की बढ़ोतरी का जो 2011 का रेशियो आया है, उसके अंदर मुसलमान और हिंदू दोनों बराबर है। हमारे यहाँ भी इतनी औलाद हो रही है, हिंदुओं के यहाँ भी, और वो पूरी पूरी टीम नहीं होती है खानदान। इसलिए हिंदुस्तान कभी भी, हिंदुस्तान के हिंदू 2050 तक में कहीं भी हिंदुस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत के ज़ाहिरी इम्कानात नहीं, ज़ाहिरी इम्कानात कह रहा हूँ, ये जो तरकीब से कह रहे हैं कि 2050 में लोग आबादी में बढ़ जाएंगे हमसे, ये ज़ाहिरी एतबार से तसव्वुर नहीं है। इसलिए क्या वो ज़ब्ती विलादत सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने अमल किया है, खास करके पढ़ा लिखा तबका। इसकी भी मुख्तलिफ वजूहात इन्होंने 2 नंबर में सब कुछ बतलाए। अभी तो फैशन के तौर पर पूरी की पूरी टीम हो, मुसलमानों का जो तस्वुर दिलाया जाता है, हर बुधवार को बुधवार के अंदर डॉक्टर की डायरी आती है, सर बहुत अच्छी चीज़ें भी लिखता है। मुसलमानों के मुतालिक ये लिखता है कि ये लोग वादे के पाबंद हो, ऐसे की बात उनसे न लो तब भी, और या भूल भी जाओ ये याद रख के आते हैं, उनका आखिरत की जेही की फिक्र है उनको। फिर दूसरी बात ये कि डॉक्टर की बात मान लेते हैं, हिंदू की तरह ये नहीं करते। लेकिन तीसरी चीज़ वो कसरत से लिखता है, जब भी किसी मुसलमान औरत की बच्चे की विलादत का मसला होता है तो फोटो भी जो देता है, एक बच्चा हाथ में एक पेट में है और एक उंगली पकड़ के चल रही है, ये इस तरीके के आंख नव की टीम आगे पीछे, ये इस तरह बतलाते हैं। उसको बताना ही पड़ेगा, नहीं उसको सब कुछ बतलाए मुसलमानों की फिर तो हिंदू राजी न हो, बात चलेगा कैसे में, लोग पढ़ेंगे इनकी डॉक्टरी कैसे। खैर, तो ये आज भी आया है, लेकिन आज किस्सा इनका दूसरा है। लेकिन ये कि इस तरह उमूमी तौर पर वो इस तरह के अहवाल बतलाते हैं। इसमें इन लोगों ने ज़्यादातर मुसलमानों के मुताबिक यही तस्वुर करवाया है। लेकिन अब जो नई 2-3 साल से जो पूरी की पूरी रिपोर्ट आ रही है इनकी, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक अभी 2-3 महीने पहले रिपोर्ट आई, वो कागज भी हमने महफूज कर रखा है। उसके अंदर भी यही बतलाया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है जिस रफ्तार से यानी फीसद के एतबार से हमारी तो उनकी ज़्यादा होगी, बच्चे इनके ज़्यादा होंगे, हमारी रफ्तार से है तो भी, इसलिए हम 20-25 करोड़ और वो 1 करोड़ 1 अरब, इसलिए फर्क तो पड़ेगा ही इसका। लेकिन इसके बावजूद तो खैर ये मार्कस ने सबसे पहले इस तरह का नजरिया कायम किया था। इस नजरिए की बुनियाद पर बड़ा रखूँ औलाद कौम तस्वीर हमला फरमाया उसकी वजह में, तो नस्ल इंसानी के सिलसिले में उसने कहा कि एक मुद्दत के बाद ज़मीन तो बढ़ेगी नहीं और इंसानी आबादी बढ़ जाएगी। ज़मीन तो 1, 2, 3, 4 की रफ्तार से पैदावार तो हो रही है, और उसके मुकाबले में इंसानी पैदावार 1, 2, 4, 8 डबल ही करते जाने का 16। लेकिन एक दादा ऐसे ने 9 छोकरा हो तो कितना बच्चा तस्लीम लाभ से नहीं 9 एक साथ रफ्तार से चलेंगे, इसलिए कितनी मिकदार हो जाएगी बतौर फैशन के। अब आजकल मुसलमान तो उसने ये किया था, लेकिन बाद में साइंसदानों ने उसको रद्द कर दिया। ये कहा कि इसका नाम रखा झूठा पैगंबर। उसने कहा कि 150 साल के बाद रुए ज़मीन के ऊपर इंसानों को खाने पीना नहीं मिलेगा, और इतना है कि इंसानों से ज़्यादा खाना नजर आ रहा है। हम लोग सोचते थे तनकारियों में एक लाड़ी होती थी, सुबह से लेकर शाम तक वो बेचारा घूमता था, लेकिन पैसे हो तो लोग लेने खरबूजाने तरबूजाने ये सब लेकर चलते थे, हमारे मोहल्ले में भी आता था, लेकिन कोई थोड़ा कुछ लिया लोगों ने, और अब ढगले के ढगले लगे हुए हैं। पहले मिसाल थी फारसी में रहबर फारसी में पड़ी होगी, यक अनार वसत बीमार, अब उल्टा हो गया है, सर अश्खास हो यक अनार नहीं, अनार ज़्यादा है नहीं बीमार कम है। मार्केटें बड़ी पड़ी हुई हिंदुस्तान भर की, ये वो बेचारा नहीं समझ रहा था। उसको इतना ही मालूम था कि आबादी कम किस तरीके से पूंजी हो जाएगी। उसको ये मालूम नहीं था कि इंसान हाइब्रिड ज़माने में जी रहा है। पहले छोटा सा कपासिया होता था ना, अब सिनेमा इतना बड़ा हो गया। छोटा सा टमाटर होता था ना, अब अल सब्जी में हमारे गांव के एक साहब मुझे सुना थे कि 1 किलो का तो इन्होंने तो तोला है, 1 किलो का टमाटर हुआ। खैर तो उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ गए। तो ये इतनी चीज़ें हो गई कि मसला ही उल्टा हो गया। ज़ब्त विलादत की ये जो शक्ल थी, ये तो साइंस ने रख कर दी। फिर ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है, जो आबादी और काश्त के काबिल अभी नहीं है, उसके बावजूद। तो ज़ब्त विलादत के
یہ تو پرانا تھا 150-200 سال پہلے کا. اب جو ضبط ولادت ہوتے ہیں اس کے پیچھے یہ سپنے کار فرما ہوتی ہے، بطور فیشن ہوتا ہے. اپنا بچے کو اپنا دودھ بھی نہیں پلا رہی، بلکہ اب اور آگے ترقی کر لی ہے، بچے کو بھی اپنی خود میں نہیں رکھتی ہے، وہ بھی کرائے پر دے دیا ہے، سروگت ماتا یہ بھی چلا ہے. اور پھر اس کے اوپر بھی مسائل کھڑے ہوئے، پارلیمنٹ میں بھی آئے، آگے یہاں بھی سیمینار ہو چکے ہیں. وہ اس کی حقیقی معنی کہلائے گی، یعنی بچے کے ولوغ ہونے کے بعد اس کو انسٹیٹیوٹ میں یا تو رکھا جائے یا سیدھا وہیں سے اس کو محفوظ کرنے کے بعد دوسری کسی عورت کی رحمداری میں ڈال دیا جائے. اور بچہ وہیں تربیت پا رہا ہے، اسی کا کھا رہا ہے، اسی کا پی رہا ہے. اب فقہ میں ہوا کہ ماں کس کو کہا جائے، مرد اور عورت نے مادے بندیا کو تیسری کسی عورت کی رحمداری میں ڈالا ہے اور اس کو سروگت ماتا کہتے ہیں. وہ 8 مہینے کوکھ میں رکھتی ہے، 8-9 مہینے، اور پھر بچہ کس کا. عرب علماء میں اختلاف ہو گیا. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي وَلَدْنَكُمْ، تمہاری مائیں وہی جنہوں نے جنا. یہ ماں نے جنا ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ ماں نے جنا نہیں ہے، یہ جننے والی تو اسی پہلے والی کو ہی کہا جائے. اس کو زیادہ سے زیادہ رضائی ماں کے حکم میں گن سکتے ہیں. رضائی ماں اس طرح اس بچے نے 9 مہینے اس کا پیا ہے، سب کچھ کھایا ہے، اس اعتبار سے اس لیے اس کی اولاد کے ساتھ مسائل آئیں گے. خیر یہ تو شرعی حکم ہے. یہ اس طرح بھی اب فیشن کے طور پر یہ بھی شروع ہو گیا ہے. دودھ پلانے کی تو بہت پرانی بات ہو گئی. اب تو بچے کو جننے کے لیے بھی یوروپ کی عورتیں اپنے بچے کو نہیں جنتی ہے، اور بچہ رکھنا ہو تو اس طریقے سے مادے بندیا کو. اور ہندوستان میں موجود ہے پٹیل لوبی، یعنی مدھیہ گجرات، وہاں کی کئی عورتیں ہیں جن کے اس طرح کی مسئلہ ہے. یوروپ اور امریکہ کی عورتیں یہاں آتی ہے اور پھر وہ مادے بندیا ان کے پیٹ میں رہتا ہے، 9 مہینے رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد بچہ وہ لے جاتی ہے، اس کو بھی کبھی لے جاتی ہے. مسئلہ یہ آیا، اس نے دعویٰ کیا کہ بچے کی ماں میں ہوں، تو بچہ اگر امریکہ کا ہے تو میں بھی امریکن ہو گئی بچے کی وجہ سے. جو کچھ اصول ہے کچھ ملکوں میں، خاص کر کے کینیڈا وغیرہ میں یہ مسئلہ چلا 2 ملکوں کے درمیان، اور اس طرح کا جھگڑا ہوا. اسی طریقے سے یہودی عورتیں بھی، ان کے بھی بچوں کا مسئلہ آیا، جو ان کے بچوں کی تربیت کرتی ہے، پالتی ہے. پالتی الگ ہے، لیکن کبھی کبھار اس طرح کا بھی. اسی طرح تجارت اور ملازمت کی مشغولیوں سے متاثر ہے. اس بنیاد پر عورت یا سماجی دلچسپیوں میں رکاوٹ ہے، دینیوں ہاتھ لینے جوانوں لڑوانوں دل کی وڑوانوں، یہ سارے مسائل آتے ہیں. اس لیے عورتیں اس جدت میں پڑھنا نہیں چاہتی ہے. اس کی وجہ سے اولاد کی ذمہ داری سے انکار اور شریعت اسلامیہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کی مخالفت ہے. اللہ تقتلوا اولادکم کی یہ بھی ایک شکل ہے. اس طریقے سے گجراتی میں مسئلہ مشہور ہے، بیجو کیا ہے، پہلو نثارے جائے کیا ہے، دوسرا اسی وقت تشریف لائے جبکہ پہلا اسکول جائے. یہ چیزیں ایسی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ ساری وہی اس قسم کی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عقیدے میں گڑبڑ ہے پہلے والا، دوسرا ہے کہ عقیدے میں تو گڑبڑ نہیں ہے لیکن سماجیات اور اس طرح کی فیشن وغیرہ اس بنیاد پر عورتیں یہ کرتی ہے. اس کا گناہ اس گناہ کے درجے میں تو نہیں ہوگا، لیکن گناہ کے لیے ضرور ہوگا. نمبر 3، جو خواتین بلند معیار زندگی کے حصول یا زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کی خاطر نوکریاں کرنا چاہتی ہے اور اپنے مقصد تخلیق اور اس مقدس فریضے کو بھول جاتی ہے جو قدرت نے نسل انسانی کی ماں کی حیثیت سے ان پر عائد کیا، ان مقاصد کی خاطر خاندان کو محدود کرنے کا تصور قطعاً غیر اسلامی ہے. نمبر 4، جو بچے مقاصد نہیں ہے شریعت کے یہاں، اس کی بنیاد پر مسلمان وہی کر رہے ہیں. نمبر 4، جو بچہ فلسطین جو آباد ہے اس کی وجہ ایک عالم صاحب وہاں جا کے آئے، پرسوں رہے، انہوں نے مجھے سنایا کہ فلسطین کی سرزمین سب جو شاداب ہے، سمجھ رہے ہیں، بچے جنے ہی جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک وہاں پر. اس لیے یہودی کتنے ہی مارتے ہیں لیکن بیلنس جو کرنا چاہتے ہیں وہ بیلنس ہوتا ہے. تاکہ آپ نے 1-2 مہینے پہلے سنا ہو کہ ایک قیدی ہے مسلمان، اس نے مادے مندیہ پہنچایا اپنی بیوی کو، اور وہ جیل میں ہے اس لیے نیا بیوی مل ہی نہیں سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہاں کے مسلمان ڈاکٹروں نے اس کو پہنچایا اور پھر وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ بھی مجاہد. تو اس طریقے کی بھی وہاں کوششیں ہو رہی ہے. یہ چیزیں ایسی ہے، بلند معیار زندگی کے لیے ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف اپنی نسل کو باقی رکھنے کے لیے اور اپنے اولاد کے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس طرح بھی ہو رہا ہے. نمبر 4، جو بچہ موجود ہے اس کی پرورش، رضاعت اور نشو و نما میں اگر ماں کے جلد حاملہ ہونے کی وجہ سے نقصان کا خطرہ ہو تو ایسے صورت میں مناسب وقفہ قائم رکھنے کی خاطر عارضی مانع حمل عارضی طور پر جائز ہے. ایک بچہ پیٹ میں ہے اور ابھی دودھ پی رہا ہے اور دوسرا تشریف لے آیا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ ابھی یہ عورت برداشت نہیں کر سکتی، اس طرح کی ساری مسائل ہے. تو ایسے موقع پر بیچ کے اندر وقفہ کرنے کے لیے عارضی اور وقفے والی جو شکلیں ہوتی ہے استعمال کرنے کی وہ جائز ہے. ہمیشہ کے لیے نسبندی اور ضبط ولادت والی جو شکل ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہے. وقتی طور پر عارضی طور پر اس طرح جائز ہے. حضرت مولانا تقی صاحب کی کتاب میں میرے والد میرے شعر میں انہوں نے اپنے ایک بھائی اور بہن کا قصہ لکھا ہوا ہے، پڑھ لینا، اس کے حصہ سے تعلق نہیں ہے.
नंबर 5 दायमी मने हमल की तदाबीर का हजरत ने जो इशारा किया है, बहन ने भाई को कहा कि मौलवी कुर्सी का करना तो आई हो, इसी मजाक में बात हो रही है। दायमी मने हमल की तदाबीर का इस्तेमाल मर्दों के लिए किसी भी हाल में दुरुस्त नहीं है। मर्दों के लिए भी नहीं, औरतों के लिए भी। औरतों के लिए भी मने हमल की मुस्तकिल तदाबीर ममनू है, सिवाय एक सूरत के। वो इस्तिस्नाई सूरत यह है कि माहिर काबिल एतमाद अतिब्बा की राय में अगर अगला बच्चा पैदा होने की सूरत में औरत की जान जाने या किसी उज़्व के तलफ हो जाने का ज़न्ने गालिब हो तो इस सूरत में औरत का ऑपरेशन करा देना ताकि इस्तिक़रार हमल न हो सके जायज़। ये सारी लेकिन डॉक्टरी कार्रवाई और इत्मीनान के बाद मुतलक ने इसको बहाना बनाकर फतवा नहीं दे देने का है। कोई पूछे तो आप इस्तिस्नाई शक्ल को पहली शक्ल में कर दो, बस की जो तीसरी चीज है और वहाँ जो खिड़की है वो इमरजेंसी का होता है, रोजाना दाखिल नहीं होना है। इस तरह ये मसाइल भी फकाहा की इस तरह के। नंबर 6 आर्जी मने हमल की आदत है जो इस्तिस्नाई चीजें उसको पहली बतला देते हैं ताकि अवामुन्नास आपसे ज्यादा आगे फतवे में बढ़े, ये मुनासिब नहीं। आर्जी मने हमल की तदाबीर और अदविया का इस्तेमाल भी आम हालत में जायज़ नहीं है। आम हालत में जायज़ नहीं है, आर्जी तौर पर भी, जब तक कोई परेशानी न हो। और परेशानी यही कि औरत को बच्चे की विलादत के मौके पर तकलीफ है, या मसलन उसको प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है औरत को, और इस किस्म के मसाइल में ये चीज़ें भी परेशान कुन होती है और डॉक्टरों ने कहा हो कि बीच में वक्फा थोड़ा ज़्यादा रखा जाए। इस तरह की मुसलमान डॉक्टर तबीब वगैरह अगर तो मुसलमान भी आजकल पहले तो वही देंगे कि इतनी ज़्यादा हमें बहन हमारा भी है, तीसरे की ज़रूरत है। चाइना ने 2 बच्चों के बजाय हिंदुस्तान में आया है, यूपी में तो ये मसला शुरू हो गया। ये जो बच्चों की विलादत का मसला है, ये भी यानी अल्लाह तबारक तआला ने इस दुनिया को पैदा किया है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वक़द्दरनाहु तक़दीरा। अल्लाह पाक ने हर चीज़ का अंदाज़ा लगाया है। लेना है तो भी एक साथ बहुत सारों को ले लेते हैं, पहले एक एक दो मरते थे, अब इतनी बढ़ी गई, ट्रेन भी हादसा हो गया एरोप्लेन का, या और इस तरह पानी के सैलाब वगैरह देख रहे हैं, ज़लज़ले आए, तो अल्लाह पाक की तरफ से जितनी मिक़दार रखती है इतनी मिक़दार वो रखती है, आपके करने से नहीं होगा। लेकिन यूरोप अमेरिका ने ये कि बहुत ज़्यादा इंसानी आबादी होगी तो हमारा दुनिया भर को लूटने का जो अमल है उसमें भागीदारी हो जाती है। इसके लिए जो सारी लड़ाई है कोरोना की ने वैक्सीन की, सारी इसके पीछे यही कार फरमा है कि इंसानी आबादी को कम करो ताकि हम ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। हाँ तो रहे ही है लेकिन सब्र नहीं है, कानून वाले मामला है अमीर मजीद का। तो इस बुनियाद के ऊपर ये इस किस्म के तस्वुरात बनाए जाते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर नस्ल खुशी की जाती है नस्ल। तो अल्लाह तबारक तआला ने अपनी तरफ से इसका निज़ाम बनाया है। इंसान अपने एतबार से जो कुछ सोचे ये नहीं, चाइना वालों ने 2 बच्चे के बजाय 1 बच्चा कर दिया। अब वहाँ उमूमी तौर पर यह है कि बड़ों की तादाद ज़्यादा है और बच्चों की तादाद ज़्यादा, बीच की जो नस्ल है उसकी तादाद कम हो गई। तो अब चाइना ने सिर्फ 2 बालक वाला शुरू किया, उससे न समझते हुए अब ये 2 के बजाय 1 वाला कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस बात को समझा रही है डॉक्टरी लाइन से कि हिंदुस्तान अभी इस वक्त जो मजबूत है उसकी वजह नौजवानों की कसरत है जो काम कर सकते हैं। 20-25 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक का जो दौर होता है ये मजबूती वाला दौर होता है। ये जिस मुल्क में ज़्यादा आबादी होगी जिस वहाँ के लोग ज़्यादा तरक्की पाएंगे, कारोबार में, तिजारत में, हर चीज़ के अंदर। चाइना ने इसको करना शुरू किया, अगर से बहुत बड़ी आबादी है लेकिन अब असरात और नताइज उसके आने लगे और भी दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं। नंबर 7 चंद इस्तिस्नाई सूरतों में आर्जी मने हमल की तदाबीर व अदविया का इस्तेमाल मर्दों और औरतों के लिए दुरुस्त है। मसलन औरत बहुत कमज़ोर है, माहिर अतिब्बा की राय में वो हमल की मुतहम्मिल नहीं हो सकती और हमल होने से उसे शदीद ज़रर लायक होने का कवी अंदेशा हो। माहिर अतिब्बा की राय में औरत को विलादत की सूरत में नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ और ज़रर में मुब्तला होने का खतरा हो। या हमारे दावत में लगे हुए कुछ साथी औरत के ऊपर जुल्म करे तो ये भी पसंदीदा है, और ये भी नहीं है तो ऊपर वाली अक्सर तो वही होती है, ये ऐसे तो शादो नादिर ही होते हैं लेकिन ज़्यादातर वही फैशन वाले ही होते हैं। आज़ा की पेवंदकारी। नंबर 1 किसी इंसान का कोई उज़्व नाकारा हो चुका और उस उज़्व के अमल को बच्चों को दूध ही नहीं पिलाती हैं औरतें, लेकिन उनका जिस्म बिगड़ जाएगा स्तन वगैरह का मसला, तो इसलिए दूध ही नहीं पिलाते। फिर उसके बाद ये आया बच्चे नहीं जन्ने का, वो भी दूसरे के हवाले करने का, तो कहाँ का इंसान अपने आप को बचाने जाएगा। प्लास्टिक सर्जरियों से 2 से जवान हो जाए तो अंदर का मशीन थोड़ा जवान होता है, अंदर की जो चीज़ें हैं वो तो सब अल्लाह पाक ने रखी हुई है, वो जितना काम करना है वही करेगा। किसी इंसान का कोई उज़्व नाकारा हो चुका और उस उज़्व के अमल को आइंदा जारी रखने के लिए किसी मुतबादिल की ज़रूरत हो तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए गैर हयवानी अज्जा का इस्तेमाल। यही होता है, नबातात इस्तेमाल होती थी और दूसरी दवाइयाँ इस्तेमाल होती थी, उनसे इलाज होता था। ऑपरेशनों में भी इस तरह की दूसरी चीज़ें इस्तेमाल होती थी,
अब साइंस ने थोड़ी तरक्की की है और बहुत ज़्यादा तरक्की करके अब DNA और इस तरह की दूसरी सर्जरियाँ ऐसी हो गई है कि अब कान भी पैदा हो गए, इंसान के DNA ले लिए जाते हैं फैक्ट्री और मशीनरी के अंदर। पहले 3.5 महीने का अंदाज होता था कि बच्चा पेट के अंदर किस कैफियत में है, और अब 21 दिन के अंदर इनको पता चल जाता है। इतनी तरक्की, इसलिए कि जो माध्य मंडिया जिस कैफियत के साथ अंदर आ गया, उसमें जो DNA है, अंदर के जो अज्जा है, वो अज्जा तब्दील नहीं होते, यानी बुनियादी अज्जा तब्दील नहीं होते। ऊपर के तो आदि देखते हैं इंसान की पूरी शक्ल बदल जाती है। 10 साल में पूरा का पूरा हमारा रोजाना हम घिसते हैं न बढ़ते हैं, घिसते हैं न बढ़ते हैं। अब 10 साल के अंदर पूरा का पूरा जिसमें, बल्कि 30 साल में लोगों ने कहा तो 10 साल हो 30 साल हो, उसमें दूसरा इंसान आता है, नहीं है, लेकिन दूसरे पूरे बदल के, सारी ईटें उसकी बदल गई एक एक करके, लेकिन नई ईटें आई, लेकिन ये मुसलसल तसलसल के साथ हो रहा है। तो इस बुनियाद के ऊपर इंसानी अज्जा के सिलसिले में इन्होंने गौर किया, और अब उसके बाद 21 दिन के अंदर भी पता चला लेते हैं कि आने वाला बच्चा अपाहज होगा, सही होगा। इस तरह की जितनी भी मालूमात है वो DNA की इससे ही मालूम। इन्होंने ये महसूस कर लिया कि ये चीज़ बदल, लेकिन ये मशीनरी मुश्किल है, हर जगह नहीं मिलती है। इंडिया में भी मशीनरी बहुत कम हॉस्पिटलों में है, इसलिए अमूमी तौर पर ये पहले वाला ही तरीका अभी चलता है कि डॉक्टर अभी नहीं बदला सकते। उसके बाद ही यानी औलाद के सिलसिले एक साहब ने थोड़े दिन पहले एक मसला इसी किस्म का पूछा। इससे पहले इस तरह का मसला आपको सलाहुद्दीन सुल्तान साहब के हवाले से कह चुका हूँ। 4 महीने पर किसी अरब औरत का उनके ऊपर फोन आया, उन्होंने कहा कि अपने बच्चा 5 महीना अंदर रहेगा मशीनरी। अल्लाह पाक की कुदरत है, हो सकता है कि जो आधा की कमजोरी महसूस हो रही इस वक्त, तो अल्लाह पाक मुकम्मल कर दे, और फिर होगा भी ऐसा। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे अपाहज होंगे, ऐसा 3.5 महीने में बतलाया जाता था, अब 21 दिन में बतलाया जाता है। लेकिन इसके लिए जो रिसर्च होता है बहुत महंगा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मसला आता है इस तरह का, तो पहले इन्होंने यही कहा कि डॉक्टर ने कहा कि बच्चा इस तरह होगा, 21 दिन में कैसे बता रहे हैं। उन्होंने फिर हमने पढ़ा भी मजबूत DNA के जरिए सीधा ही उनका ये कहना है कि इसमें आर्जी तब्दीलियाँ तो होती है अंदर के माध्यम में, लेकिन असली जो तब्दीली है वो इतनी नहीं होती, और DNA में असली तब्दीली को ही मदार बनाया जाता है। इसलिए अब साइंस वहाँ तक पहुँच गई है। बच्चा माँ के पेट में किन किन मरहमों से गुजरता है, सारी इन्होंने एक्सरे ले लिए और पूरी मशीनरियों में आ गया। अब इसके बाद इनके सामने पूरी ये चीज़ आई, तो अब इन्होंने बच्चों की माँ के पेट के अंदर एक औरत के पेट से दूसरी औरत के पेट में बिछड़ी, मैंने कहा सरोवर वालिदा का, ये मसला भी इसी तरीके से इन्होंने हल किया कि जब वो इस कैफियत में पहुंच गया कि अब इसमें जिसको पढ़ाने मुस्तक़र रहा फरमाया, वो इस्तिक़रा मुकम्मल हो चुका है, अब ये इधर उधर जाने वाला नहीं है, उस इस्तिक़रा की शक्ल में फिर उसको औरत की रहमदारी में डाल दिया जाता है। अब वो इसके अंदर के अज्जा में भी वो तब्दीली नहीं होती जो जौहरी और बुनियादी तब्दीली कही जाती है। इसकी बुनियाद के ऊपर ये महसूस कर लेते हैं, लेकिन कभी गलती भी होती है। ये बहुत बारीक में बहुत लतीफ़ टेस्ट किए जाते हैं उसके बाद, और वो भी DNA के जो माहिरीन होते हैं वही उसको बतला सकते हैं। ऐसे जानवरों के आज़ा का इस्तेमाल जिनका खाना शरअन जायज़ है और जो बतरीक़े शरअ ज़बह किए गए हो, जान की हलाकत या उज़्व के ज़ाय होने का कभी खतरा हो, और इस मतलूबा उज़्व का बदल सिर्फ ऐसे जानवरों में ही मिल सकता है जिनका खाना हराम है या हलाल तो है लेकिन बतरीक़े शरई ज़बह न किए गए हैं, तो ऐसी सूरत में इन गैर माकुलुल लहम या माकुलुल लहम मगर गैर मदबूह जानवरों के आज़ा का इस्तेमाल जायज़ है। और अगर जानिए उन्होंने शुरू किया जानवरों के अज्जा, हड्डियाँ वगैरह, इनसे चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, एक तो दवाइयाँ बनाई जाती है, और एक ये है कि जानवर का वो उज़्व ही लेकर इंसान के उज़्व में डाल दिया गया, इस तरह भी हुआ। तो ऐसे जानवर जिनके आज़ा जिनका इस्तेमाल शरअन जायज़ है, तो तरीके शरीय ज़बह किए गए हैं, जायज़ है। दूसरा, जान की हलाकत या उज़्व के ज़ाय होने का कभी खतरा हो, और मतलूबा उज़्व का बदल ऐसे जानवरों में ही मिलता है जिनका खाना हराम है, उसके बदन का कोई हिस्सा लेकर ही इसकी जान बचाई जा सकती है। जैसे मिसाल दे चुका हूँ, सूअर का बाल है, लेकिन बाल के लिए वही बाल काम आता है, तो एक ऐसी शक्ल के अंदर आगे यानी बाल इतना डैमेज हो चुका है कि और दूसरी जितनी भी चीज़ों से ये बांधते हैं वो मजबूत नहीं रहती है, डैमेज हो चुका है इसके, और अब इसी से रहता है। तो यकीनन मजबूरी की हालत में सूअर के बाल को इस्तेमाल कोई इल्ला मस्तूरी तो उनकी जिम्मे में वो आ जाएगा। या हलाल तो है लेकिन बतरीके शरई ज़बह नहीं किए गए, लेकिन शक्ल ऐसी है कि परेशानी है, तो ऐसे मौके पर उनका इस्तेमाल जाए। गैर माकुल लहम या माकुल लहम मगर गैर मजबूत जानवरों के अज़ा का इस्तेमाल ये इस तरह की कैफियत है। और अगर जानिए उज़्व की हलाकत का शदीद खतरा न हो तो खिंजीर के अज्जा का इस्तेमाल जायज़ नहीं, आम हालत में जायज़ नहीं है। नंबर 2, इसी तरह कि इंसान के जिस्म का एक हिस्सा इसे इंसान के जिस्म में तो बहुत आसान है, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी
सी दवाइयों में इस्तेमाल होती है, ये इतनी डॉक्टरी अपनी महारत वाली चीज़ें होती है कि आम हालात में हमको मालूम नहीं होता। लेकिन अगर आप डॉक्टरों से तहकीक करने के बाद या तो इंटरनेट आ चुका है तो इसमें भी फ़ायदा, तो इस लाइन का जो माहिर हो उनको बताया जाए कि भाई इस तरह की तहकीक करो इस चीज़ में, और उसमें फलानी दवाई के अंदर क्या इस्तेमाल है, फलाना बदन का जुज़ है तो किस तरीके का हमारे पास आया है, इस तरह की सारी तहकीकात करने के बाद कुछ पता चल सकता है। इसी तरह कि इंसान के जिस्म का एक हिस्सा उसी इंसान के जिस्म में वो वक्त हादत इस्तेमाल किया जाना जायज़ है। रात दिन देख रहे हैं आप, बाईपास सर्जरी के लिए उम्मी तौर पर पैर की रगें निकाली जाती है, हाथ में भी जो रगें हैं अल्लाह पाक ने सेटिंग ऐसा रखा है कि दोनों एक दूसरे के साथ सेट हो जाती है। नंबर 3 आज़ा इंसानी का फर्क। बाल का मसला आता है, बाल काल है, बाल नहीं है, तो ऐसे मौके के ऊपर ये यहाँ के बाल लिए जाते हैं और उसको लेकर या यहाँ के पिछले हिस्से से बाल ले लेते हैं और फिर उसको उगाया जाता है। अगर से फैशन के तौर पर है, इसके तकल्लुक़ बिग़ैरिल्लाह, तकल्लुक़ अल्लाह की जो तकलीफ है उसके अंदर तब्दीली करना तकल्लुक़ लाजिम तो आता है, लेकिन अगर शादी नहीं हो रही है, लड़की है, बाल नहीं है, तो ऐसी शक्ल में उसके लिए गुंजाइश है। उसके लिए तो खैर दूसरी सब है, लेकिन अगर वो ये करना चाहे तो भी कहा कि यहाँ गुंजाइश है, शादी ही नहीं हो रही है। लेकिन आम दूसरे अहवाल के अंदर महज 50 साल के हैं, 90 साल की तकलीफ है, जवाब से दिखा दूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग करवा रहे हैं। एक साहब आए थे 2-3 दिन पहले, अभी इस उम्र में भी इन्होंने 50 से ऊपर ही पहुँचे थे और बाल उगाए हैं। तो ये इस तरीके से बड़ौदे जाते हैं, बम्बई जाते हैं, अमृतसर जाते हैं, इस तरह का सब जगह शुरू हो गया है फैशन के तौर पर। और फिर ये कि वो खतरनाक होता है, अंदर मारते हैं, जैसे वो इंजेक्शन लगा देते हैं, लेकिन ये कि है सब खून आलूद हो जाता है, इसलिए कि बाल उगाने हैं, यहाँ से लेकर अंदर उसको कुदरत को डालना है, जिस तरीके से आपको दाना डालते हैं फिर उसको उगाया जाता है। नंबर 3 आज़ा इंसानी का फरोख्त करना हराम है। फरोख्तगी भी बहुत हो रही है, किडनियाँ बेचने वाले। नंबर 4 अगर कोई मरीज ऐसी हालत में पहुंच जाए कि उसका कोई उज़्व इस तरह बेकार होकर रह गया है कि अगर इस उज़्व की जगह किसी दूसरे इंसान का उज़्व उसके जिस्म में पेवन न किया जाए तो कभी खतरा है कि उसकी जान चली जाएगी, और सिवाय इंसानी उज़्व के कोई दूसरा मुतबादिल इस कमी को पूरा नहीं कर सकता। और माहिर काबिल एतमाद अतिब्बा को यकीन है कि सिवाय उज़्व इंसानी की पेवनकारी के कोई रास्ता उसकी जान बचाने का नहीं है, और उज़्व इंसानी की पेवनकारी की सूरत में माहिर अतिब्बा को ज़न्ने गालिब है कि उसकी जान बच जाएगी, और मुतबादिल उज़्व इंसानी इस मरीज के लिए फराहम है तो ऐसी ज़रूरत, मजबूरी और बेकसी के आलम में उज़्व इंसानी की पेवनकारी कराकर अपनी जान बचाने की तदबीर करना मरीज के लिए मबा होगा। आज़ा इंसानी की सर्जरी उसमें जो कुछ तफसील की थी अपने ज़माने के हिसाब से, इसलिए वो दूसरी चीज़ों के मुताबिक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबी रज़ियल्लाहु ताला की नाक ज़्यादातर ये हो जाती थी, जंग कर चुकी थी, तो फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की नाक लगवाने की इजाज़त दी थी। दूसरी घर की लगाते थे चांदी वगैरह तो बदबू आती थी। है इससे कुछ निकाल कर ये तो चांदी या सोने की गुफ्तगू है, यहाँ है एक की किडनी दूसरे के जिस्म के अंदर डाली जाए। अभी तो सिर्फ किडनी तक का मसला है हमारे यहाँ। दूसरी कौमों के यहाँ चक्षुदान भी होता है, मरने से पहले आंखें दुश्मनों को, या तो पूरा मेडिकल अपने आप को पूरा वक्त कर दिया डॉक्टरों के हवाले। इंतकाल के बाद कुछ आज़ा ऐसे होते हैं कि चंद घंटों तक आँख भी सलामत रहती है और उसी वक्त ले ली गई और फिर उसको इंडिया लेबोरेटरी में रखकर उसका इलाज किया जाता है, इस तरह की। लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके की इंसानी हरकत करना बनी आदत के पेश नज़र मसला वगैरह जायज़ नहीं है। अब हिंदुस्तान के उलमा और अरब उलमा दोनों के दरमियान मसले में फ़र्क आया है। इन्होंने तो इजाज़त दी है और दूसरे उलमा वो भी है जिन्होंने किडनी की ट्रांसफ़र की भी इजाज़त दी। इन्होंने इजाज़त दी तो ये सारी शर्तें जिक्र की जो आप सुन चुके हैं, इंसानी आज़ा का दूसरा मुतबादिल इस कमी को पूरा नहीं कर सकता है। अतिब्बा ने कहा कि इसके बगैर कुछ नहीं होगा। फिर दोनों की किडनी देखी जाती है, ऐसा नहीं है कि किसी की किडनी लेकर रख दी। तो मौलाना तकी साहब ने जगह पर लिखा है कि मैंने मुस्लिम डॉक्टरों को कहा, किडनी के स्पेशलिस्ट को, कि आप लोग मसनूई तौर पर बदन के दूसरे आज़ा बनाते हो, मसनूई है हृदय भी आ गया है, ये भी मसनूई बन जाता है और उसको चलाया जाता है, पंपिंग के जरिए बदन के दूसरे आज़ा तक खून को पहुँचाया जाता है। तो इस तरीके से मसनूई तौर पर तुम किडनी क्यों नहीं बनाते? तो मुस्लिम जो माहिर किडनी था उसने कहा कि मौलाना किडनी का भी अपना एक साइंस है, मेरे और आपके जिस्म में जो किडनी है हर एक की किडनी दूसरे को सेट नहीं हो सकती है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ मशीनरी है कि यहाँ से वहाँ फिट कर दिया, ये अल्लाह पाक का उस बदन के तमाम आज़ा के साथ किडनी का रखा है, इसलिए वो बदन के आज़ा और किडनी दोनों एक दूसरे के साथ मैच खाने जरूरी हो। किडनी तो ले ली दूसरे किसी के जिस्म में रख दी और वहाँ वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है,
نیچے انہوں نے کڈنی کا مسئلہ ذکر کیا، اوپر تو دوسرے اعضاء کے متعلق۔ اب آج کل کثرت سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، عرب علماء نے تھوڑی گنجائشیں زیادہ کی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عرب علماء اور ہمارے درمیان ایک فرق روپیے پیسوں کا ہوا، دوسرا ہندوستان اور عرب میں تو ڈاکٹری ہے ہی نہیں، سیدھے چلے جاتے ہیں امریکہ یورپ کے ملکوں میں، تو وہاں مسئلے بھی خاص آئے ہیں یورپ سے۔ اس لیے عرب علماء کو جو نئے نئے سوال کیے گئے وہ ہندوستان کے علماء کے پاس ابھی آتے ہیں، اس لیے کہ یہاں ڈاکٹری ابھی اتنی اس درجے کی ترقی یا اس اعلیٰ درجے کی کیونکہ تو یہاں بھی ہے، لیکن استعمال کرنے والے نے تو شروع کے، اس لیے ان کو تو استعمال کرنا آسان ہے، ان کے لیے روپیے پیسے، اس لیے مہنگی مہنگی ہاسپٹلوں میں مہنگی دوائیاں اور علاج اور آپریشن وغیرہ ہوتے ہیں، اس لیے عرب علماء کے پاس مسئلے کثرت سے آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہاں ہندوستان میں اسی رفتار سے مسئلہ ہے، اسی رفتار سے ملک چل رہا ہے، اور سوال کرنے والے عموماً عامی مسلمان ہوتے ہیں، اکا دکا کبھی کوئی بہت مالدار ہو جائے اس کے مسائل آئے اور وہ اس طرح کی چیزیں پوچھے، یا یورپ کے ملکوں میں آئے اور وہ پوچھے، تو اس لیے ہندوستانی علماء نے اعضاء انسانی کی پیوند کاری میں دوسرے کسی انسان کے خود بخود لینے کی سلسلے میں یہ اتنی شرطیں لگائی کہ یہ دونوں ضروری ہے۔ متبادل عضو انسان اس مریض کے لیے فراہم ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی دو تو کڈنیاں ہیں لیکن اس کی دونوں کڈنیاں خود برابر کام نہیں کر رہی ہے اور اب وہ کسی اور کو دے رہا ہے، کسی باتیں بھی گڑبڑ ہوتی ہے۔ اس طریقے کے مسائل بھی پیش آئے ہیں، کبھی اتفاقی موت ہوئی اور کبھی لوگوں نے کہہ دیا کہ کڈنی نہیں اسی لیے، سب کچھ چیزیں اپنی جگہ پر ہے۔ کبھی دینے والا زندہ ہے، جس کو دی گئی وہ زندہ نہیں رہتا۔ ایسے مسئلے بھی ہمارے قریب کے گاؤں کے آئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ جو بھائی اس کی کڈنی دو ہے، ایک ہی تو ہے، تو اس کی کڈنی کے اندر یہ جو کڈنی ہے وہ اتنی مضبوط ہے، کاشتکار تھے وہ آپ کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے تھے، پتا نہیں ان کی کڈنی زیادہ مضبوط ہے، اس لیے بھائی کو دی گئی، چھوٹے بھائی کو۔ چھوٹا بھائی بھی زندہ ہے لیکن بڑے بھائی اب کسی عمر کی کمی عمر سے انتقال کر گئے ہوں گے، لیکن پھر چلی گئیاں شروع ہوئی۔ عورتوں میں تو زیادہ ہوتا ہے نا کہ یہ اتنے جاؤ جو ہمارے گئے، پتہ یہ اس طرح کے کافی مسائل بھی آتے ہیں۔ تو بڑی مضبوط تھی اس لیے کہا کہ ان کی چلے گی، دوسرے کی ساتھ مل کر کام کر رہی تھی لیکن وہ کمزور تھی اور ان کی مضبوط تھی، بھائی چل سکے گی۔ تو کسی عضو انسانی کی پیوند کاری کر کے اپنی جان بچانے کی تدبیر کرنا مریض کے لیے مباح جائز ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی تندرست شخص ماہر اطباء کی رائے کے روشنی میں اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اگر اس کے 2 گردوں میں سے ایک گردہ نکال لیا جائے تو بظاہر اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور وہ اپنے رشتہ دار مریض کو اس حال میں دیکھتا ہے کہ اس کا خراب گردہ اگر نہیں بدلا گیا تو بظاہر حال اس کی موت یقینی ہے اور اس کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے، تو ایسی حالت میں اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ بلا قیمت اپنا ایک گردہ اس مریض کو دے کر اس کی جان بچا لے۔ مریض کے لیے فری میں ہے، اس کے لیے تو فری میں دینا ہے، لیکن آپ اگر گئے اور کتنی بکر ہی ملتی ہے اس کے بغیر نہیں مل رہی ہے تو ایسے دے کر خریدنا چاہیے، جیسے خون کا مسئلہ آپ سن چکے ہیں۔ نمبر 6، اگر کسی شخص نے ہدایت کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے اعضاء پیوند کاری کے لیے استعمال کیے جائے، جسے عرفی عام میں وصیت کہا جاتا ہے، حضور شرع اسے اصطلاحی طور پر وصیت نہیں کہا جا سکتا، اور ایسی وصیت اور خواہش شرعاً قابل اعتبار نہیں۔ ہمارے یہاں قابل اعتبار نہیں ہے، ہندوؤں میں تو چلتا ہے لیکن مسلمانوں کی اس طرح وصیتیں کرنا کہ میرے مرنے کے بعد میری پوری باڈی میڈیکل سائنس کو دے دی جائے، میڈیکل کالج کو، اور وہ لوگ میرے بدن پر ریسرچ کریں، یہ ایک مسلمان کی اکرام اور احترام، انسان کی اکرام، مسلمان کو اکرام کے خلاف ہے، اس لیے مناسب نہیں ہے، یعنی جائز نہیں ہے، ایسی وصیت پر عمل نہیں۔ اوپر والے جو 2 بتلائے مولانا برہان الدین سنبھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دونوں پر اشکال تھا، اس لیے اعضاء انسانی کی پیوند کاری کے لیے انہوں نے منع کیا۔ سخت ضرورت ہو تو ابھی دوسری کسی چیز سے علاج کیا جائے یا پھر اللہ پاک کے حوالے کیا جائے، لیکن کڈنی کی ٹرانسفر یہ اس زمانے میں مولانا نے فرمایا تھا، اس کو بھی کافی سال ہو گئے۔ اس کے بعد اب بہت سارے حضرات عموماً تو وہی فتویٰ دیتے ہیں، 1989 میں تو سیمینار ہوا ہے، تو اتنا، اور اس کے بعد کتنے سال ہو گئے آپ حضرات کو تشریف لائے دنیا میں، آپ کو معلوم ہے 2021 چل رہا ہے، تو اس لیے اس کے بعد مسائل کے اندر بھی یہ آئی، انہوں نے تو منع کیا ہے لیکن کڈنی کے سلسلے میں اجازت دی، عرب علماء کے یہاں تھوڑا مسئلہ پاس چل رہا ہے، وہ حضرات گنجائشیں دیتے ہیں، پھر ایک یہ ہے کہ ان کے اپنے ملکوں کا حل دیکھ کر، یا یہ کہ ان کے یہاں توسط بھی ماشاء اللہ ہے، بہت سی چیزوں کے اندر تو ماشاء اللہ توسط ہے، مطلب یہ کہ اتنا توسط ہے کہ کبھی کبھار وہ اعتدال کی حد سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ اس لیے اس قسم کے مسائل میں مفتیوں کو فتویٰ دیتے وقت اس شخص کے یعنی انفرادی فتاویٰ کے اندر تو ضروری ہے کہ اس کے تمام احوال کو دیکھیں، اور اجتماعی فتاویٰ میں تو اس طرح کی شرطیں مطلوب